A very good morning to all of you. A warm welcome, Dr. Brijesh Tripathi ji. Thank you. Today, we all gather here for a beautiful session on the topic emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around you. There are five key elements to emotional intelligence, that is self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. And we have Dr. Breeze Tripathi ji. A warm welcome, ma'am. Dr. Breeze Tripathi at present working with NCRT, a unit of Ministry of HRD. She is an ex-member of Child Welfare Committee, a self-defense trainer and social activist, a certified master trainer for EWR by WCD Ministry, and has trained more than 19,000 underprivileged girls in the last 12 years free of cost. She is also an NCS trained career counselor and initiated by Labor and Employment Ministry. Besides, she has also been taking seminars and making children aware about the POCSO Act. She has thus sensitized many women and children, especially the adolescents, on the safe and unsafe touch, self-defense, and women's safety. She is a national silver medalist. Academically, she has obtained a PhD in management along with dual master's degree in MBA and psychology to her credit. She also has published and present more than 10 papers in international and national journals and conferences. An academician turned counselor, she has dedicated her 27-year of life in social work and various other related fields and has received many awards for her philanthropic activities, which include national level awards as well. A warm welcome, ma'am, on the behalf of KC Group of Institutions. Now, Thank I you so much. invite Dr. Ma'am to please start beautiful session on beautiful topic, emotional intelligence. Thank you so much, everyone. I would like to take this opportunity to thank the KC Institute and especially Dr. Rashmi Gujarati ma'am to provide me this wonderful session. As you said, it's a beautiful subject and it's a beautiful way of expressing yourself. So, as I cannot see anyone because all the cameras are off, so it feels like it's a one-way communication which I'm doing. And communication is actually an important role to play in this emotional intelligence session. So your expression, what you are feeling by my, the way I'm talking, if you are feeling bored, if you are feeling happy, if you are feeling sad, all these emotions which is required in emotional intelligence session. Thank you so much, whomsoever. Um, yeah, thank you so much. So it is a one word, two liner. Please tell me what basically you understand by emotional intelligence. Then we will delve into the session because I need to know whether you understand what is emotional intelligence or not. Don't go for the Um, Google search, just tell what you know. to control your emotion in every situation. So that is Yes. the way. Hmm. All emotional intelligence. Hmm. Okay. To understand your own emotion and to understand the emotion of others. You can say like this also, right? Yes, So yeah, once you are balanced, once you recognize your emotions, then you will be able to control your emotions. See, self control comes in different, there is step.
once you are aware, then only you can control. So we will get into that. First of all, you must understand this is a key to success. Emotional intelligence is a key to success. There are two things: intelligence quotient and emotional quotient, right? So intelligent quotient takes you to the top, like numerical, 12th में 100 99% आ गए, 95% आ गए. But when you give an interview of college or job, that takes you to the doorstep of job or the college or the success. But when you succeed, or which you take you far, that is emotional quotient. If you have emotional control, if you have emotional quotient, then you will succeed in your life. As I said, it's a key to personal and professional success. One should have this emotional intelligence. Now, talking why college students needs emotional intelligence. Tell me, it's very easy. Why you need emotional intelligence class? Why you need emotional intelligence as a core subject in your what you say, this engineering subject? You know, that is a must now. Engineer students are learning emotional intelligence as a subject. Why it is required? Tell me. Let's, because we have already wasted time. I'm not waiting for your answer. Let me answer you. You might have heard कोटा में इतने बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, या you might have heard डिप्रेशन में था बच्चा, बहुत पढ़ा लेकिन he wasn't able to get through. तो क्या होता है, उसका लो एस्टीम, लो इमोशनल इंटेलिजेंस वहां पे दिखाता है. वो जब ऐसे फैसले लेता है, इसका मतलब वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा. ही इज नॉट एबल टू बैलेंस हिज ओन इमोशंस, राइट? सो that is why now in first year in MP, Madhya Pradesh, emotional intelligence is a must for every engineering student, for every professional student. They are indulging this emotional intelligence as a subject. So it's good that in your orientation period only you are understanding what is emotional intelligence. Okay. In a world what increasingly interconnected and reliant, or you can say effective communication, effective collaboration, so honing or brushing up our emotional intelligence has become more essential than ever. You know, this was not the case before, but nowadays we are facing stress. Nowadays we are facing very you can say stressful life, tension, lots of happenings, lots of activities, but the time is same, 24 hours. So before WhatsApp, before digital invention, before digital intelligence, there were lots of time. We were one activity at a time. So we were not very stressful. We were having things smoothly. Am I right or not? But now what is happening? At one side we are having WhatsApp, at one side we are having ChatGPT, one side we have to read the book, at one side we have to attend the lecture, then offline lecture, then online lecture, then friends, Instagram, chats, Snapchats, and hell lot of an activity you are actually indulge into. Getting my point or not? See, if you feel that you are not getting my point, that is why I'm slowly and steadily telling you each and everything. Just understand these things. If you require, I will share the PPT also, right? So where is the PPT? Yeah. uh, just hold on. So in these all activities where we are lagging, where we are lacking with, we are lacking with time, we are lagging on time. So the pressure is more and the time is less. So obviously you feel stress, you feel that you are
are leading a stressful life and you need emotional intelligence. Am I able to share the PPT now? Hello? Is it visible now? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So, I was telling you that during this session, we will delve into the fascinating uh, session or realm of emotional intelligence. You will love this session because how it influences our interaction, how it influences our decision making, how it influences our overall well-being. You will come to know that how emotional intelligence is the important subject which you should learn, which you should live, which you should adopt, and in which you should adapt yourself. Correct? So, we will uncover the science behind emotional intelligence, its components, and its profound impact on various aspects of our life. How our life is actually influenced by emotional intelligence, from building strong relationship to navigating challenges, situations with grace and resilience. What is resilience? Anybody knows? It's a good ability which everyone should have. Okay, so emotional intelligence basically came into existence in 1964 by Michael Beldorf. But it was in 1955, it was all, you can say, it actually came into existence. But the person who show the world that what we have learned, or what is the new subject, we always keep that person in front. So it has been popularized by the psychologist Daniel Goleman in 1990, because Daniel Goleman always said that why emotional intelligence is required. Okay, so as you can see that it is the ability to recognize and manage own emotions and others' emotions. Getting my point? So we we both, that means me and you. How many of you are there? I cannot see, that's why I'm asking. How many of you people are actually actively participating in this session? So we embark this journey together, and we will learn practical strategies and techniques to enhance emotional intelligence. Right? So it's a crucial factor. As you can see, you have this PPT here. It will lead you to professional and personal success. Okay. So why EI is important? As I said, for your better social skill. When you enter into your college world, you are actually एक सीधा साधा school boy or school girl say, you get some freedom. You feel that now I am big, मैं बड़ा हो गया हूँ, I am older, I am elder, I have become mature, so I need some space. And that time you will be actually going through the mental hormonal changes, chemical changes, and the social scenario. What social skills you were having in school, it is totally different in college. So students enables to understand and navigate their emotional situations, their social situations more effectively once they are what do you say, they are good at emotional control, balance. Okay, it's a, like we say in our management, balance of payment. So same way, emotional and intelligence both have, you have to manage. You can have good positive relationship if you are able to manage your emotional stability, right? Your emotional intelligence, the more higher emotional intelligence you have, you are more able to understand and maintain positive relationship with your group, with your teachers, and with your friends. Okay, so a person who is
good in emotional intelligence or good in emotional balance or good in emotional quotient, he or she is more able to be successful in life. As I said, आपके मार्क्स आपको जॉब के दरवाजे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको प्रमोशनल हाइट्स तक लेके जा सकते हैं, आपको सस्टेन करा सकते हैं आपके जॉब में. गॉट इट? सो द मेन थिंग, अब आप लोगों में से मुझे ये बताइए कि हमारे लाइफ में हमारे लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? पैसा, हेल्थ, रिश्तेदार, सक्सेस? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? बताइए. देखिए, ऐसे चुपचाप बैठ के आप अटेंड करेंगे तो आप सो जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना. बताइए. आकाश कौशल, बोलिएगा. 29 बच्चे हैं, 29 बच्चों के म्यूट है क्या माइक? तो कोई एक अनम्यूट करें और मुझे बताइए कि आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? फैमिली. इंद्रनील के लिए फैमिली इंपॉर्टेंस रखता है. जशान और तनुष, दीपक, आकाश, कोई बोलेगा? अच्छा, चलिए, इनका जवाब नहीं है. एक सवाल और पूछती हूँ. आपने कभी रास्ते में घूमते हुए वो मानसिक विक्षिप्त लोग देखे हैं जिनको अपना होश नहीं रहता? देखा है? यस मैम. देखा है ना? सिर्फ इंद्रनील ने ही देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा. चलिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए. एक एक्सरसाइज कराती हूँ. कैमरा ऑन कीजिए. अभी आप में से कोई, एनीवन, फीलिंग स्ट्रेसफुल? किसी को भी थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है क्या? ठीक है, आई कैन सी. किसी को भी वो बोल सकता है मुझसे. मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है. Anyways, see, emotional intelligence plays a crucial role in student success. So you better learn emotional intelligence. You will say कि मैडम मुझे कोई कुछ कह देता है तो बहुत बुरा लगता है. हम्म? तो मैं बहुत दिन तक वो चीज सोचता हूँ. हम में से कितने लोग हैं? आप लोग हैंड रेज कीजिएगा. इसमें एक ऑप्शन है हैंड रेजिंग का. आप हैंड रेज करके मुझे बताइए कि आप नए नए कॉलेज में आए हैं, बड़े इंथुजियाज्म में आए हैं, और आपको अचानक समझ में आता है या पता चलता है कि किसी ने आपके बारे में कोई गलत बात कही है, कोई रूमर उड़ा है, या आपके पीठ पीछे कोई बात बोलता है, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? आप उसको कितने दिन सोचते हैं? 2-4 दिन सोचते हैं? आपके दिमाग में वो बात घूमती है? कितने लोगों के साथ ये होता है, बताइए. देखिए, आप लोग अगर हैंड भी रेज नहीं कर सकते हैं तो फिर तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा. आई डोंट नो. देखिए, जैसे ये हैंड रेज का ऑप्शन है, मैंने हैंड रेज किया है, इसी तरीके से आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं. यहाँ रेज का एक ऑप्शन होता है चैट और पीपल के बगल में. कितने लोगों को ऐसा लगता है, बताइए. जसप्रीत, ओके. तो आपको ऐसा लगता है, फिर आप क्या करते हैं? बोलिए जसप्रीत, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आई मीन ऑडिबल और नॉट. ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? चैट पे बोलिए.
देखिए चैट पे मैं टाइप कर रही हूँ, आई फील बैड when people talk about me. I feel bad when a faculty scold me. ऐसा लगता है सबको? बताइए। When you feel happy, आप लोगों को पता है कि हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं? हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, ये बात सबको पता है? Ma'am, we try to avoid it. It is not a serious matter. Very good. Good. You should avoid it, but you should not keep it in your brain. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, किस्सा नहीं, छोटी सी बात शेयर करती हूँ। ये करके देखने की चीज है, ठीक है? कैरिंग योर टमाटोज, ओके? व्हाट वी डू एक्चुअली, एक हाफ ए केजी टमाटो किसी कपड़े के बैग में लेकर उसको अपने कंधे पे टांग के घूमिए, सुबह से लेकर आप उसको घूमिए। पहला दिन बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपको लगेगा ठीक है एक भार है, लेकिन इट्स ओके। सेकेंड डे वो टोमेटोज खराब होने लगेंगे, क्योंकि आप सोते में, बैठते में, उठते में, जागते में उस टोमेटोज को कैरी कर रहे हैं। थर्ड डे वो क्या हो जाएंगे? दैट विल बी रॉटन टोमेटो, राइट? फिर आपको उस रॉटन टोमेटो की गंदगी महसूस होने लगेगी, आपको इरिटेशन शुरू हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। उसके बावजूद भी आप फोर्थ डे उसको फिर से कैरी करेंगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप मेंटली हिल जाएंगे, आपको लगेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन नहीं है। अगर आप लोग हाँ या ना भी नहीं बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगी, एक पीपीटी शो करके निकल जाती हूँ मैं। बताइए आपको कैसा लगेगा? आपको बदबू आएगी? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या सवाल पूछा था कि आप लोगों के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो मुझे एक जवाब मिला कि फैमिली। इट्स गुड दैट फैमिली को आप इतना कंसिडर करते हैं, मगर आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए आपका मेंटल हेल्थ। तो आपका मेंटल हेल्थ कैसे महत्वपूर्ण होगा? हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ? Through emotional intelligence. This is the answer. Through emotional intelligence, students can manage stress, anxiety, and other all related emotional like happiness, sadness. आपके जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके डोपामाइन को, आपके एंडोर्फिन्स को, आपके ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, आपके एंडरलाइन को, आपके प्रोजेस्टेरोन को, ये सारे जितने भी आपके इमोशनल हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, इन सब को आपको मैनेज करने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और आपके मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए, जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को देखते हैं सड़कों पे जाते हुए, when you see them what you feel bad about them। आप सोचते होंगे ये ऐसा कैसे हो गए? उसका वजह ये रहता है कि दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देयर इमोशंस। छोटे छोटे बातें, उनका जो डोपामाइन है उसका लेवल कम हो जाता है। डोपामाइन एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन का, जो जनरेट नहीं होता तो हम पागलपन के हद तक चले जाते हैं। हम सुनते हैं ना, कोई किसी के साथ ब्रेकअप होने पे पागल हो गया, कोई सिलेक्शन नहीं होने पे पागल हो गया, किसी को कोई और इश्यू थी तो पागल हो गया। तो ऐसे सारी चीजें तभी होती है। So you should manage your mental health as a first priority. When your mental health is good, you can manage your physical health, you can manage your family, you can manage your job, you can manage your college, everything in the whole universe. You can manage your fear, you can manage your happiness, you can manage your sadness. Everything can be managed by emotional intelligence.
जो साधु संत बन जाते थे पहले के जमाने में, भगवा पहन लेने से इंसान साधु संत नहीं हो जाता। तो जो पहले जिनको संत कहा जाता था, जो सोक्रेटिस या अपने यहाँ के जितने भी भृगु जो संत होते थे, उनको हम संत क्यों कहते थे? हम गौतम बुद्ध को, महावीर को, सबको क्यों कहते हैं ये दुनिया से ऊपर उठे हुए लोग हैं? क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, they have managed their emotional intelligence. That is why we say that they are saint. वो उस लेवल को पार कर चुके हैं. Now when you manage your emotions, you can have effective communication, you can have a leadership quality. Okay, emotional intelligence is like having smart brain for your feeling, for others feeling. It's all about to understanding and managing your own emotions and others emotions, being happy, being sad, or how people are feeling. आप कभी किसी से कहते हैं ना, भाई यार तेरी तो हाइट ही नहीं है, या यार तू कितनी काली हो रही है. Never say, never do the body shaming, never say all these kind of sentences to your friends in your peer group. Why? Because you are hurting one's feeling. When you are hurting one's feeling, maybe that person is not having high emotional level, he will go down, go low esteem in his own life. Okay, so जैसा कि मैंने बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव लीडरशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कैसे करता है? जब आपने देखा होगा जब दो लोग लड़ते हैं तो या भीड़ इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती है, उनमें से 2-3 लोग बाहर आते हैं, वो कहते हैं भाई लड़ो मत, सुनो सुनो क्या हुआ है, बात हमें बताओ. दे प्ले एज अ वॉलंटियर बिकॉज दे आर हैविंग हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. तो दे आर एबल टू वो कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो दे आर एबल, उसके जो भी नेगेटिव आउटकम्स है उसको पॉजिटिव आउटकम्स में बदलने के लिए दे आर एबल टू नेविगेट, दे आर एबल टू नेगोशिएट, क्योंकि दे आर गुड एट देयर इमोशनल बैलेंस, राइट? सो सेम वे, who is a good leader, who can actually produce more leader, he is a good leader who can produce more followers. हम कहते हैं ना बहुत सारे फॉलोअर को, जैसे हम बाबाओं के बारे में सुनते हैं बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो क्या वो एक्चुअली लीडर होते हैं? नहीं, लीडर वो होता है जो अपने जैसे और लीडर्स पैदा करे. ठीक है, तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है. आप उस चीज से ऊपर उठेंगे तभी तो आप और लीडर्स पैदा कर पाएंगे और लीडर्स को लेके आ पाएंगे. लीडरशिप क्या होता है? आपकी कही हुई बात को एक टीम समझती है, उस टीम को लेके आप काम करते हैं. अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं आएगी. नो वन विल actually try to follow you. If you have good emotional intelligence, you can build good relationship, because इमोशनल इंटेलिजेंस एक अच्छा रोल प्ले करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्टूडेंट, हाँ कोई कुछ कह रहा है? किसी को कुछ बोलना है या सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर नहीं तो यू कैन chat, you can write in the chat box. So I was telling you that emotional intelligence is required for the student. It plays a crucial role in student success, overall well-being within the classroom and outside the classroom as well. आप यहाँ पे 3 साल पढ़ेंगे, 3 साल में आपको फैकल्टी मिलेगी. कोई फैकल्टी गुस्से वाली होगी, कोई फैकल्टी अच्छी होगी, कोई फैकल्टी बहुत एकेडमिक प्रेशर वाली होगी, कोई ये आपसे कह सकता है कि नहीं मुझे ये काम कल के कल में चाहिए. तो उस वक्त क्या करेंगे आप प्रेशर में आ जाएंगे? नहीं, आप इमोशनल बैलेंस. अब इमोशनल बैलेंस कैसे किया जाए? हम पहले इसको समझते हैं. इमोशनल बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है. आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ. जब आपको ये पता चलेगा कि आप किस रोल से गुजर रहे हैं, किस फीलिंग से गुजर रहे हैं,
तब आप अपने आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, जो स्वॉट एनालिसिस जिसको हम कॉलेज की भाषा में कहते हैं, मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें तब आएगी हम अपनी जब हमें ये मालूम चलेगा कि यस, मैं जो चीज़ से गुजर रहा हूँ। कल रात को मैं एक स्कूल बॉय की काउंसलिंग कर रही थी, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज गोइंग थ्रू, what he is going through right now। वो मुझसे कह रहा था, मुझे मैडम बहुत जल्दी आजकल रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेले बैठने की इच्छा हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे बात ना करे, मुझे शांति चाहिए, मुझे एक जगह चुपचाप बैठ के कुछ सोचना है। तो मैं उससे बात करती रही। अल्टीमेटली मुझे ये पता चला कि उसके क्लास में उसके टीचर उससे अच्छा बिहेव नहीं करती है, तो ही फील इंसल्टेड, राइट। तो ये इस तरीके की चीजें, दैट मीन्स ही वाज सेल्फ अवेयर अबाउट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, व्हाट इमोशन ही इज गोइंग थ्रू। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अ काउंसलर, राइट। सो मैंने उसको कुछ एक्सरसाइजेस करने को दिया 10 दिन की। हमें क्या करना चाहिए जब हमें मालूम चलता है कि हम बहुत गुस्से में आ रहे हैं, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, या इस तरीके की कोई भी एक चीज मेरे, देखिए आपके पास बहुत अच्छे दोस्त होते हैं आपको ये बताने के लिए कि भाई तुझे क्या हो गया, तू तो स्कूल में था तो बहुत हंसमुख रहता था, आजकल तुझे क्या हो गया, तुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ रहा है, या तू बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, तू तो हमारे लीडर हुआ करता था। ये सारी चीजें बताने के लिए आपके पास आपके दोस्त हैं, आपके पास आपके मम्मी पापा हैं जो आपके व्यवहार के चेंजेस बताएंगे। The moment you get this feedback, try to regularize yourself, self regulation। अब सेल्फ रेगुलेशन होता है कि हमारा कंट्रोल इमोशंस के ऊपर, इम्पल्सेस के ऊपर, रिफ्लेक्स के ऊपर। जैसे आपसे किसी ने कहा कि तुम्हारा कितना परसेंटेज बना इस बार, तो आपने एकदम से कहा कितना भी बनाओ, तुम्हें क्या करना है। आपने रिफ्लेक्स किया क्योंकि आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बने, या आप नहीं चाहते थे कि वो परसेंटेज कोई और जाने। आपके इम्पल्सेस ये बताता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं रहा अब, ठीक है। यू कैन, because you are not able to adapt yourself into these circumstances। Now what is the difference between adaptation and adaptation? Tell me। भाई अब तो किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, कोई कुछ भी बोल दो ये क्लास बोर है, इतना ही बोल दो, मैं सुनने को तैयार बैठी हूँ, मेरा बहुत इमोशनल बैलेंस है, मैं दुखी नहीं होने वाली। बोलिए बोलिए, अडेप्टेशन और अडॉप्टेशन में क्या फर्क है? अडेप्ट एंड अडॉप्ट, इसमें क्या फर्क है? हाँ बोलिएगा, किसने हैंड रेज किया है, बोलिए। ये क्या आप अपने आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? बताइए, ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा क्या? रवि कुमार ने, रवि कुमार को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। So as I said, when you are self-aware, when you understand your emotion, you are able to self-regulate your own emotions, then you can have that motivation or the ability to drive yourself, your negative thinking into the positive thinking, and your negative behavior into the positive behavior, and with that positive behavior you can always achieve your goal, okay. Because when effectively used, emotional intelligence or your own emotions, or you recognize, when you understand, or you influence the, कोई कुछ बोल रहा है क्या? Influence the emotions of others, you have improved relationship, right? You have effective communication, you have social, good empathetical skill, good social skill। बोलिएगा, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा क्या? ये क्या स्क्रीन पे चल रहा है? मैडम
मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। दिस इज वेरी पैथेटिक एंड दिस इज वेरी बैड आई से। ये तो ऐसा हो गया ना कि मैं अकेले अकेले आपको पढ़ के सुना रही हूँ। एनीवेज, हाँ, so why to control your emotions so that you can have motivation to achieve your goal, so that you can have the empathetical feeling for others। तुम empathetically दूसरों के बारे में सोच सको, उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सको। तुम्हारा सोशल स्किल जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल बैलेंस अच्छा होगा, तुम्हारा इमोशनल क्वोशंट अच्छा होगा, तो यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप एंड यू कैन ऑलवेज वर्क विथ others as a team, so your leadership skill enhance। okay, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है। विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस यू आर एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड अचीव योर गोल। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्लासरूम सेटिंग्स can be very stressful due to your academic demands, new academic demands, by because till 10th till 12th आपके अलग academic demand थे, 12th के बाद अलग हैं। तो एक सोशल इंटरेक्शन, प्रेशर, पीयर प्रेशर, किसने क्या पहना है, किसके कौन कौन सी गाड़ी में आता है, कौन कैसी बातें करता है, किसकी इंग्लिश अच्छी है, किसकी नहीं है, बहुत सारे पीयर प्रेशर्स होते हैं। So emotionally intelligent students are better equipped to manage all these stress and anxiety, so that you can cope up with the stress। You have a coping strategy, एक strategy आप वो कर सकते हैं। अब आप सब लोग आइए, हम एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सके। हम अपने डीप ब्रीदिंग से उसको कहते हैं ना कि हम एक माइंडफुलनेस, या हमें कहीं पे बात करते वक्त किस तरीके से हमारे इम्पल्सेस को, हमारे रिफ्लेक्सेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको अपनी आंखें बंद करना है और अपने शरीर को, मेरुदंड जिसको कहते हैं, आपका बैक, आपका ये जो रीढ़ है, इसको स्ट्रेट रखिएगा, मुझे देखिएगा, इसको स्ट्रेट रखिए, ये देखिए ऐसे स्ट्रेट रखिए और अपने हाथों को एक ध्यान मुद्रा में करके अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखिए। प्लीज डू इट, क्लोज योर आईज। ओके, अब ये सोचिएगा कि मैं एक शांत जगह पे बैठा हूं, आसपास का कोई शोर, कोई रोशनी। प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज विथ मी। I am sitting in a calm and quiet place. No light, no noise, no hindrance is coming in between my mind, me। कितने लोग कर रहे हैं ये एक्सरसाइज? मैं अपने आप को धीरे धीरे एक अंधेरे की तरफ लेके जा रही हूँ। आंखें बंद होने पे मेरे दूर उजाला नजर आता है, एक येलो, एक टिंट नजर आता है मुझे, एक गोल्डन टिंट नजर आ रहा है। मैं 2 मिनट शांत होकर बैठना चाहती हूँ। मेरे पास किसी का कोई शोर नहीं, कोई पुरानी बातें, किसी की कही हुई बातें मेरे पास नहीं, कोई भी चीज मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है। मैं सांस ले रही हूँ, मैं सांस छोड़ रही हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ सांसों पे केंद्रित है, सिर्फ सांस लेने में और सांस छोड़ने में केंद्रित है। बाकी आसपास की किसी भी चीज में मेरा ध्यान केंद्रित नहीं है।
मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे सर के ठीक ऊपर मैं अपनी आँखों से उसको छू रही हूँ और उसको ढीला छोड़ रही हूँ। मेरे माथे को मैं अपनी आँखों से छू रही हूँ और ढीला छोड़ रही हूँ। मेरे आईब्रोज जो हैं उनको भी मैं महसूस कर रही हूँ और इन्हें भी ढीला छोड़ रही हूँ। मेरी आँखों को महसूस कर रही हूँ और उसे भी ढीला छोड़ रही हूँ। मेरी नासिकाएं, मेरे गाल, मेरी गर्दन, मेरे कंधे, गर्दन के पीछे का भाग जहाँ मुझे बहुत दर्द था वो भी हल्का हो गया है। मैंने उसे ढीला छोड़ दिया है। वो एक पंख की तरह हल्के हो गए हैं। गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी, कमर, पूरा पीठ मेरा बहुत आराम मिल रहा है। कमर, पैर, घुटने, घुटनों की पिंडलियां नीचे, सब कुछ मैंने ढीला छोड़ दिया। मेरे अंगूठे, वो तो है ही नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। मेरे सांसों पे कंसंट्रेशन है। मेरा ध्यान सिर्फ सांस लेने में और सांस छोड़ने में। मैं पेट से सांस लेके नासिकाओं से पेट खाली होने तक सांस छोड़ रही हूँ। अब मेरे हाथों को मैंने ढीला छोड़ दिया है। अब 2 मिनट ऐसी शांति से बैठना चाहती हूँ। धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। अपने हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों में लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अगर ये एक्सरसाइज, ये मैंने थोड़ा जल्दी कराया, समय के थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था, तो ये एक्सरसाइज अगर आप रोज रात को सोने से पहले करेंगे तो सुबह आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा जिंदगी में। ये एक मेडिटेशन का स्टेप है, हम सबको करना चाहिए। 5 मिनट के मेडिटेशन से आप शुरू करेंगे और आप 1 महीने के अंदर 15 मिनट के मेडिटेशन पे आ जाएंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। ओके, सो आई वॉज टेलिंग, आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। इफ यू फेल्ट सम पॉजिटिवनेस, प्लीज रेज योर हैंड्स। सो आई वॉज टेलिंग मोटिवेशन एंड रिसैलियंस। रिसैलियंस क्या होता है? रिसैलियंस, जब हम बचपन में एक हमारे पास एक गुड्डा होता था जिसके नीचे रेत होती थी प्लास्टिक का, जिसमें हवा भर के रखते थे। जब हम उस गुड्डे को मारते थे तो गुड्डा क्या करता था, जमीन पे गिरता था फिर उठ के खड़ा होता था, जमीन पे गिरता था फिर उठ के खड़ा हो जाता था। तो रिसैलियंस इज सेम थिंग। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हम वापस गिर के हम उठ के खड़े होते हैं, है ना? वो एक ताकत, उठ के खड़े होने का एक ताकत, वो हमारे अंदर आना चाहिए। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंट जब होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं, तो वी कैन बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक्स ऑफ आवर लाइफ। ओके, वी कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर एकेडमिक प्रिजर्वेंस। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो फेवरेट गेम्स है, हमारे फ्रेंड्स हैं, इन सबके साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम एम्पैथेटिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या समझ रहा है, जब हम ये समझेंगे तो हमारे फ्रेंड्स भी बनेंगे। ओके, हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाएंगे, हम क्लास में लीडरशिप दे पाएंगे,
the students who are with strong emotional intelligence, they can exhibit leadership qualities. They can inspire and they can motivate their group, their peer. They can take on roles of responsibility. They can contribute. They can contribute positively to the project, group projects आप लोगों के होते हैं ना जो, and other activities. बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, वो सारी चीजें करने के लिए you will be able once you have understood what is your emotion and you are self aware by which emotion you are driven with. आपको अगर पता चलता है, कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो लंच के ठीक पहले पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, वंस दे आर डन विद देयर लंच वो वापस खुश हो जाते हैं क्योंकि भूख उनके गुस्से को ड्राइव करता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रिजल्ट आने से पहले वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ड्राइव होते हैं अपने रिजल्ट से, कोई क्या कहेगा इस बात से। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस इमोशन से ड्राइव हो रहे हैं। वंस यू आर सेल्फ अवेयर यू विल बी एबल टू गेट द अवेयरनेस, देन यू विल बी एबल टू रेगुलेट योर इमोशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो फोकस और अटेंशन के लिए it play emotional intelligence play for the focus and attention as well. Okay, it contribute to improved focus and it contribute to get your attention, get your classroom attention as well. A student who can manage his emotion or her emotion, they are better and they are able to concentrate on the studies, absorb the information and engage in active learning. So for overall well-being, for your overall well-being, emotional intelligence plays a crucial role. Emotional intelligence promotes overall well-being by helping students manage their emotional states, because everything is ruined by your emotional state only. आप देखते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, वो एकदम से ऐसा कोई कदम उठा देते हैं विथ लो इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है कि वो दीन दुनिया में या तो बुरे बनते हैं या वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं या फिर वो ऐसा कोई गलत कदम उठा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बैलेंस ना होने की वजह से। सो जब आप इमोशनली बैलेंस्ड है, इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड यू कैन नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ द एकेडमिक environment. See, this in turn can have a positive impact on your mental health. मैंने क्या कहा था, mental health बहुत जरूरी है and your academic success, right? So हमारे पास ये 5 कंपोनेंट्स है जो बहुत जरूरी होता है, अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। इसी 5 स्किल्स पे हमें खेलना है, मैनेज करना है, समझना है, दूसरे की चीज समझनी है, दूसरे को समझाना है। ठीक है, तब जाके आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा एंड करियर में, मेंटल हेल्थ में, मेंटल आउटकम में, एवरीवेयर यू विल गेट सक्सेस। ओके, सो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? प्रैक्टिस से। ठीक है, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपको किसको क्या क्या दिखाई दे रही है ये मुझे बताइए। ये किसकी तस्वीर है? ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये किसकी तस्वीर है? आप बताएंगे प्लीज? प्लीज कुछ तो बोलो मैडम, आपके बच्चे इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं भाई। बोलिए, ये तस्वीर क्या दिखाई दे रहा है? What you see in the picture? Whom you see in the picture? चैट पे लिख लीजिए। Yes, Ashish, adaptation means you adapt yourself into a situation, or adaptation is something you can say you take over. लाइक एक बहू जब शादी होकर आती है तो वो उस कल्चर में, अपने ससुराल के कल्चर में खुद को अडेप्ट करती है और ससुराल वाले उसको एज ए बेटी या बहू अडॉप्ट करते हैं। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, इसलिए इसके अलावा कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता था अडॉप्टेशन और अडेप्टेशन का। What you see in the picture, please tell me.
कुछ लोग कहते हैं इस पिक्चर को देखकर, ये जवाब भी मैं ही दे देती हूँ क्योंकि आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे। कुछ लोगों को ये एक मीम साहब लगती है, हाँ या ना बोलिएगा। यस तो लिख के भेज सकते हैं। और कुछ और दिखाई देता है आशीष, जसप्रीत, आपको इसके अलावा? Okay, I see a man, an old woman, and a girl. Am I right or not? There are three pictures in one. 3 पिक्चर को मर्ज करके एक पिक्चर बनाया है, क्योंकि हम परसेप्शन करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, हम उसके कल्चर से, उसके रंग रूप से, उसके हाव भाव से, उसके इकोनॉमिक क्लास से, उसके जेंडर से, उसके एज से परसीव करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं करना है। ओके, आइंदा आप ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, बिकॉज यू पीपल आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, तो मुझे लगता है कि ये सेशन अब यही खत्म कर देना। मुझे एक ऐसा इंटरैक्टिव सेशन चाहिए था, क्योंकि मेरे सेशन में जब कोई बोलता है तो उसका जवाब देने में वो सेशन बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होता है कि मज़ा नहीं आता। मुझे आपके फैकल्टीज अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी कुछ बात कहनी है कि एजुकेटर कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फोस्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट। देखिए, ये आपके हमारे हाथ में है कि हम अपने स्टूडेंट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे फोस्टर करते हैं। ठीक है, कल जो मैंने बच्चे को काउंसलिंग किया, मुझे ये पता चला कि उसका एजुकेटर ही उसको डाउन कर रहा है, वो बच्चा दुखी है। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों से अनुग्रह और अनुरोध है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द एजुकेटर दैट प्लीज foster emotional intelligence in your student by incorporating activities, discussions, practices, promoting self awareness things, इम्पैथी डेवलप करना, इमोशनल रेगुलेशंस को आप नोटिस कीजिए अपने बच्चे में। आप एक एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के देखिए, and by developing all these emotional intelligence, students are better equipped to thrive academically, socially, and emotionally in your classroom, and you will feel good when you teach them कि उनका लाइफ बियॉन्ड द स्कूल भी है। दे हैव ए लाइफ बियॉन्ड द स्कूल, दे हैव ए लाइफ बियॉन्ड द कॉलेज, they have a life beyond the classroom. So you as an educator can promote them, can regulate them, can make them understand what is emotional intelligence, and give them some activities when you see a person dull and thriving for intelligence. You can have emotional orientation class which will aim to provide participants with understanding of emotional intelligence, and they can equip them with practical skills. ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऑनलाइन सेशन होना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे आपको मजा आए, जो आप इन्वॉल्व होके कर सकें। तो आप अवेयरनेस, इम्पैथी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन सब की अलग अलग एक्टिविटीज होती है। आप कैसे एक दूसरे को जानते हैं, कैसे इंटरवीन करते हैं एक दूसरे की बात पे, किस तरीके से आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। मैं बात करने में कमजोर हूँ तो मैं किस तरीके से ग्रुप में बात कर सकता हूँ, ऐसे सारे एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि आप अपने क्लास में भी इमोशनल इंटेलिजेंस को एक 5 मिनट का एक रोल प्ले करके या बोलकर या समझकर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। So with this, the quote which is written, that emotional intelligence is the ability to recognize or manage one's own emotion, मैं अपना सेशन खत्म करूंगी क्योंकि हमने आज यही सीखा। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी लर्निंग आउटकम क्या था, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैंने क्लास लिया। मैं ये नहीं कह सकती कि क्लास में बच्चों ने क्या सीखा, क्योंकि उसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। आई हैव नो क्लू दैट वेदर यू आर एबल टू क्या टेक अवे है आपका, मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको सिखाया
कि आप यही पढ़ने से बेटर सोशल स्किल्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप, इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ आ सकता है आपको। आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी और रिसाइलियंस आता है। ओवरऑल ये बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, whether it is personal or professional success, or whether it is for school, classroom, or your office, or your own home। आपके घर के लिए भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं if you are emotionally stable। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। मुझे नहीं मालूम हमने कितना लिसन ही किया या देयर इज सम टेकअवेज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's really valuable session. As you said, nowadays people are facing stress. With the help of emotional intelligence, we can solve it out. Stress management is very important, right? As ma'am tells, with the help of AI, we can manage it. Emotional intelligence also plays a vital role in the different fields and also for our success. As ma'am has said earlier, for better social skills, positive relations, for improvement of mental health, it's very important. So ma'am, thank you so much. On the behalf of KC Group of Institutions, I want to thank, I want to express my heartfelt and I also want to thank Dr. Rashmi Gujarati ji, our campus director of KC Group of Institution, who give us opportunity to interact with you, ma'am. So thank you so much. It's really a very good session. We really learned a lot about emotional intelligence. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Valuable intelligence. Thank you, everyone. ओके।